हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुशिंग सिंड्रोम के ऊपर तो आपको कैसे उसको लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। सो कुशिंग सिंड्रोम, इसमें हम कैसे कैसे लिखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे इस सिंड्रोम का, उसके बाद इसके कॉजेज बताएंगे, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स, फिर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन मैनेजमेंट। So स्टार्ट करते हैं। Cushing syndrome is a disorder caused by prolonged exposure to excessive levels of hormone cortisol. हार्मोन cortisol का ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होना, एक्सेसिव लेवल तक, उससे होता है डिसऑर्डर Cushing syndrome. It is most commonly iatrogenic due to prolonged administration of synthetic corticoids such as prednisolone. Cushing's disease is a specific form of Cushing syndrome in which there is a pituitary adenoma, a benign tumor, which result in excessive secretion of ACTH. Whenever there is a Cushing syndrome and उसका cause अगर pituitary adenoma है, उसको हम Cushing's disease कहेंगे. This overproduction of ACTH stimulates adrenal glands to release too much cortisol. Now, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे etiology। दो तरह से हो सकती हैं causes: ACTH dependent causes, which is 80% of the causes. Next is ACTH independent causes, and which is 20% of total causes. Now there are four ACTH dependent causes. First is pituitary adenoma, जिसको हम Cushing's disease भी कहते हैं. It is most common, 70%. Second is ectopic ACTH syndrome, iatrogenic cause, ectopic CRH syndrome. Now ACTH independent causes: adrenal adenoma, adrenal carcinoma, iatrogenic, ACTH independent macronodular hyperplasia, primary pigmented nodular adrenal disease, and McCune-Albright syndrome. Now hypercortisolism, यानी कि increase in the cortisol in body, can be due to other causes, जिसको हम pseudo Cushing syndrome भी कह सकते हैं। एंड इनके causes होते हैं अल्कोहल में एक्सेस होना, मेजर डिप्रेसिव इलनेस का होना, and primary obesity. Now, Cushing disease and adrenal tumors 4 गुना ज़्यादा commonly देखे गए हैं फीमेल में। फीमेल is to मेल रेशियो इसकी 4:1 है, जबकि ectopic ACTH syndrome is more commonly seen in men. एक important fact था। उसके बाद हम देखेंगे clinical features। इसमें symptoms and signs देखेंगे। symptoms में आता है सबसे important weight gain, then hirsutism, loss of weight and back pain from compressive fractures, muscle weakness, menstrual disturbances, oligomenorrhea, amenorrhea and impotence in males, and depression, irritability and psychosis. Signs are centripetal obesity, जिसको हम lemon on matchstick भी कहते हैं, buffalo hump, acne, plethoric appearance, moon face, bruising, purplish stria over abdomen, buttocks and thigh, hypertension, wasting and weakness of proximal thigh muscles, skin thinning and skin infections, and hyperglycemia. ACTH secreting pituitary tumors retain some negative feedback sensitivity to cortisol, but this is absent in tumors that produce ectopic ACTH, which result in more increase in ACTH and more increase in cortisol as compared to pituitary disease, and that result in marked pigmentation and hypokalemic alkalosis, which aggravates myopathy and hyperglycemia. देन हम चलेंगे इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। 2 पॉइंट्स हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में। पहला कि पेशेंट को वेदर द पेशेंट हैज कुशिंग सिंड्रोम और नॉट, एंड अगर है तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। पहला है कुशिंग सिंड्रोम। सस्पेक्ट हमें कैसे करना है, अगर हम सस्पेक्ट है तो हमें कैसे कंफर्म करना है कि उसको है या नहीं। पहले हम एक्सक्लूड करेंगे कि वो बाहर से कोई ड्रग नहीं ले रहा है, कोई iatrogenic कॉज नहीं है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट हम इनमें से परफॉर्म करेंगे। पहला है 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट, दूसरा है ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, तीसरा है लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल टेस्ट। 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट हम 2 से ज़्यादा बार ये टेस्ट करते हैं। अगर ये ज़्यादा आएगा
अगर इसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा आएगी, 90 माइक्रोग्राम पर डे से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, एबनॉर्मल टेस्ट होगा ये। और अगर सीरम कॉर्टिसोल 50 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये एबनॉर्मल टेस्ट है। इन तीनों में से कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल आएगा तो हमें क्या करना है, बाकी के 2 टेस्ट परफॉर्म करने हैं और जो एबनॉर्मल टेस्ट आया है उसको रिपीट करना है। उसके बाद अगर तो जो टेस्ट हमने परफॉर्म अब किए अगर तो वो नॉर्मल आए, इसका मतलब कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। अगर एटलीस्ट 2 कोई टेस्ट अभी भी एबनॉर्मल आए हैं तो कुशिंग सिंड्रोम है, ये कंफर्म हो चुका है। और अगर टेस्ट रिजल्ट्स हमें अच्छे से पता नहीं चले हैं तो हम सजेस्ट करेंगे फर्दर इवैल्यूएशन। अगर तो टेस्ट शुरू से ही नॉर्मल आए थे तो हम पहले ही बता देंगे कुशिंग सिंड्रोम नहीं है, अनलाइकली। अब फर्स्ट थिंग तो हो गई, कुशिंग सिंड्रोम कंफर्म कर लिया है या नहीं। सेकेंड चीज अगर है तो उसका कॉज क्या है। कॉज हम देखेंगे कैसे, हम मेजर करेंगे प्लाज्मा ACTH। अब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या अगर तो ये 1.1 पिकोमोल से कम है ऑन मोर देन 2 ओकेजन्स तो इसका मतलब ACTH रेज्ड नहीं है, इसका मतलब दिस इज ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। फिर हम करेंगे एड्रीनल इमेजिंग विद CT स्कैन। अब इसमें हमें दिखेगा कि एड्रिनल ग्लैंड पर कोई लीजन है या कोई लीजन नहीं है। अगर लीजन है तो इसका मतलब ये एडिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है या फिर ACTH इंडिपेंडेंट मैक्रोनोड्यूलर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अगर तो कोई लीजन नहीं दिखा तो ये हो सकता है प्राइमरी पिगमेंटेड नोड्यूलर एड्रिनल डिजीज या फिर हो सकता है वो पेशेंट बाहर से ये ड्रग्स खा रहा हो। इसके अलावा अगर टेस्ट जो हमने ACTH मेजर किया था अगर उसकी वैल्यू 3.3 पिकोमोल से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, हम पिट्यूटरी MRI करेंगे और चेक करेंगे कोई लीजन या कोई एडिनोमा तो नहीं है। अगर तो है तो ये टेस्ट पॉजिटिव हुआ, अगर नहीं है तो हम फर्दर देखेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे CRH टेस्ट, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन टेस्ट। पॉजिटिव आया तो ठीक है, फर्दर टेस्ट करेंगे। हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। अगर ये भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कुशिंग्स डिजीज है, इसका कारण पिट्यूटरी एडिनोमा है। उसके अलावा अगर ये नेगेटिव आता है उसके हम बाद तो क्या करेंगे, हम बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग। अब अगर ये नेगेटिव आता है तो हम करेंगे CT स्कैन या MRI थोरैक्स का। और अगर ये CT स्कैन पॉजिटिव आए तो कुशिंग डिजीज है और अगर नहीं तो इसका मतलब एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम है। ये थी इन्वेस्टिगेशन, पहले पता किया हमने, कंफर्म किया कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, फिर हमने अगर है तो कंफर्म किया कि कॉज क्या है, या तो ACTH इंडिपेंडेंट है या ACTH डिपेंडेंट है। उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशंस के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लड शुगर देख सकते हैं, कोलेस्टेरॉल, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स, बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट, रेडियोग्राफ ऑफ स्कल एंड CT MRI हेड एंड एब्डोमेन का। Now, failure to suppress the serum cortisol with low dose of oral dexamethasone, ये हमें पता चला, there is loss of normal circadian rhythm of cortisol which inappropriately elevate the late night serum or salivary cortisol and there is increased 24-hour free urine cortisol. ये 3 findings हमें मिली. Now management. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हम देंगे पेशेंट को। ये ड्रग्स हम देंगे, इनमें आते हैं मिटायरापोन, कीटोकोनाजोल एंड ओसिलोड्रोस्टैट। उसके अलावा अगर कुशिंग डिजीज है यानी कि पिट्यूटरी एडिनोमा है तो हम क्या करेंगे, या तो हम ट्रांसफिनोइडल सर्जरी करेंगे जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ये हम अगर हम 70% केसेस में क्या होता है, ये सर्जरी के बाद इमीडिएटली रिमिशन हो जाता है एंड 20% केसेस में रिकरेंस कुछ ईयर्स के बाद होती है। ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लेप्रोटमी कर सकते हैं, बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी कर सकते हैं। बट इन क्रोन्स डिजीज ये एक तरह का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इस केस में अगर हम बायलैटरल एड्रिनलेक्टमी करते हैं तो पेशेंट को नेल्सन सिंड्रोम हो सकता है। ये क्या है, ये एक इन्वेजिव
पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं सोमैटोस्टैटिन एनालॉग जैसे कि पैसिरियोटाइड। उसके अलावा ट्यूमर्स हैं तो हम उनकी सर्जरी कर सकते हैं या थेरेपी दे सकते हैं सिस्टमिक। उसके अलावा एक्टोपिक एसिडी सिंड्रोम है तो हम लोकलाइज ट्यूमर्स की हम सर्जरी करेंगे। मैलिग्नेंट है तो हम रेडियो एंड कीमोथेरेपी देंगे। एंड रिकरेंस है तो मिटारापोन या अमाइनो ग्लूटाथामाइड ड्रग देंगे। तो हमने इसमें क्या देखा, कुशिंग सिंड्रोम हम कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। हमने पहले सबसे इंट्रो देखा, इसका क्या होता है उसके बारे में ये देखा हमने। फिर हमने कॉजेज देखे, एसिडिएच डिपेंडेंट देखा, इंडिपेंडेंट देखा। फिर हमने क्या देखा, इसके क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स देखे, साइंस देखे। और हमने क्या देखा आगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है ये देखा हमने। और उसके बाद हमने देखा इसको मैनेज कैसे करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।